So coming to the next question, which following the transaction of journal in the journal of Guru Ram, okay, and post them into the ledger. Now we already have an assets, cash in hand, cash at bank, stock, furniture, datas, Poonam and Sonu. So we have two datas in the question. So here it's a basic. It's like this is what is opening journal entry. Okay, and we have liabilities. Maybe we have Ashok and we have Pankaj. So these are credited and these all assets will be debited. And we do know that assets have a debit balance and liabilities have a credit balance. So we'll get the amount of capital from this. If you do not pass an entry for this, now you won't get the amount of capital. Many a times what happens is you skip the opening entry. You post all these transactions. That is fine. But when you skip your opening entry, you do not know that capital is also there. And if you don't pass the capital amount, the trial balance will not tell you. And I told you yesterday only that the main meaning and the most important part for doing a trial balance is to find out that there is any arithmetical mistake or no. Have you post all the accounts ka amounts? Have you made all the calculations properly? Have you balanced each and every account properly? That's the motive of making the trial balance. Correct? So here that won't tally because we are not writing the capital amount. So we'll have to pass an entry for the journal first. Chalo, so cash in hand, cash at bank, stock, furniture, daters. Okay, the ledger. This is ledger, no? This is also ledger, ledger. कितने तरह फॉर्मेट्स है लेजर के अपने पास में बहुत सारे कुटे के जर्नल कुटे है हाँ ये रहा इसको उठाते हैं हम लोग कॉपी यहाँ पेस्ट कर दे अबे कट पेस्ट जबरदस्त so cash in hand cash at bank stock daters furniture बैंक अकाउंट कैश अकाउंट है ना so date is 1st of April 2025 वो लिख देंगे हम लोग there are two daters ना Poonam and Sonu 10,000 20,000 later Poonam कैसे you can add Poonam account also only Poonam account but we know that they have given that they are the data so वो लिख सकते हो ऐसा and creditor में भी are two creditors creditors भी है yeah liability है ना बेटा see Ashok and Pankaj now the amounts two capital नहीं है perfect उसके तो यहाँ पे space आया था इसमें space छोड़ा यहाँ पे काम करो इसका ऐसे लिख दिया था now the amounts सब मुझे आप लोग बोलेंगे 20 35 15 30 35 13,500 2500 now what you'll do is your balance add subtract with this 20 35 40, 55 70 70 80 90 1 lakh 1 lakh 4,500 so total is 1 lakh 65 79 नहीं 69,500 क्योंकि 1 लाख में से गया तो 70 So guys, being started with TSM or being opening balance is carried forward. Or brought forward. April 4th, they are telling me purchase goods from Pankaj 5,000. बहुत basic entry है. क्या आएगा इसका? Purchase account cash. From Pankaj. मतलब अभी ये सब एंट्री आपके लिए ऐसा लग रहा है कि सर ये क्या ही एंट्री है एंड यू रिमेंबर दोस डेज जहाँ पे हम लोग को इसी एंट्री को पास करने के लिए वी यूज्ड टू मेक अ वर्किंग नोट एंड क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है ब्ला 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 नहीं जमाना चेंज हो गया सर 7th
पेड टू अशोक बाय चेक इन फुल सेटलमेंट 13,000 पेड टू अशोक मतलब पैसा जा रहा है। उससे पहले लिया था ना पैसा, हाँ तो पहले अशोक अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अरे जबरदस्त सर। Now I paid only 13,000. Now how much I should have paid कैसे मालूम पड़ा? लिखा हुआ है सर. So I should have paid 13,500 to him, but I only paid 13,000. So I will jabardast. So this is the balancing figure that we got. This is my discount. And आपको settlement दिया हुआ, so that's an hint for you. ये डिस्काउंट आने वाला ही है. डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो वो इनकम होता है ना। Yes, you get that discount or discount receipt both is fine. वैसे वो डिस्काउंट रिसीव और एक Allowed. डिस्काउंट Sold goods to Poonam 11,000. सर मुझे बताएंगे इसका एंट्री. So date is 11,000 and amount is 10,000. 10. ठीक है. डन. नाउ बच्चे 10th के बाद में हमारे पास आ रहे 12th. परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक 15,000. सर अभी मैं ना ये सब के लिए ऐसा नहीं करने वाला मैं. जब भी हमारे पास में टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी का पूर्ण उपयोग करते हुए सर 12 था और 15,000 राइट है. मेरे से मेरा पेज खत्म हो गया. आपको पता है मैं क्या करता हूँ. See, there are certain colleges, there are certain professors that does not like are okay with it that if you don't do the carry forward and what, but this is accountancy. You have to like stick to the basic. एग्जाम में टीचर ने बोला कि नहीं लिखा तो भी चलेगा आप मत लिखो. बट नाउ व्हेनेवर यू प्रैक्टिस यू विल हैव टू राइट. यू शुड राइट आई फील. बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड. टोटल लेना पड़ता है। या दैट्स हाउ यू गेट द बैलेंस ना. 18th, receive a check from Poonam on account and allowed her a discount of तो पहले होगा ऑन अकाउंट मतलब एडवांस में से कुछ लिया एंड डिस्काउंट भी दे दिया उसको. बैंक अकाउंट डिस्काउंट विदाउट अकाउंट। क्या बात है. 18th is the date. सर ऑन अकाउंट मतलब डिस्काउंट ये होता है एडवांस. अच्छा, ऑन अकाउंट वो कैश ही होता है। हाँ ऑन अकाउंट मतलब डिस्काउंट. सॉरी ऑन अकाउंट मतलब कि एडवांस. ऐसा बोला नहीं कि बैंक अकाउंट में मिला है. बैंक अकाउंट में नहीं मिला है. तो अगर बैंक अकाउंट होता तो इन अकाउंट बोलता. अच्छा शायद कोई ऑर्डर ऑर्डर नया दिया होगा उसने उसके लिए पेमेंट एडवांस दिया होगा. एनी इट कैन बी एनीथिंग ब्रो. 25th पे स्टेशनरी 1200. सर दिस इज वेरी बेसिक. स्टेशनरी अकाउंट डेट क्या था. 25। अरे श्योर. क्या बात है सर. तो 12 का. अच्छा 1200 अमाउंट था. उल्टा हो जाएगा ना 18 से। ई स्मार्ट या गुड कैच. You can have printing and stationery also. $27 paid electric no telephone bill by check 3,500. So this is very easy question. Here we are just trying to get that practice of ledger entries. है ना. 27th है 28th नहीं है. Next is 30th. Paid salary 6,000. सैलरी अकाउंट
Perfect. So now we'll have to make the ledger accounts. Correct? Now these are the ledger accounts. So cash and bank will have more space. बाकी सबके लिए we'll have हाँ that's fine. I think this much space is enough for cash. है ना तो कैश एंड बैंक के लिए नीचे कैपिटल छोटू सा बना देते हैं बिकॉज कैपिटल विल हैव ओनली वन ट्रांजैक्शन. चलो then you have purchase, then you have sale, then you क्रेडिटर्स डेबिटर्स को भी क्रेडिटर्स. yes sir every account will be read. और अगर लिखा रहेगा जैसे सिर्फ कैश का बना हो या सिर्फ बैंक then का you have the हाँ तो फिर तो क्वेश्चन इजी हो गया आपका. बहुत अच्छा है टेंशन ही नहीं है मगजमारी नहीं है. कैश बैंक स्टॉक फर्नीचर हाँ स्टॉक के लिए भी कोई ट्रांजेक्शन था नहीं. तो गुड्स का क्या होगा फिर? गुड्स परचेज ना पहले परचेज. this is opening stock and all that. We had Poonam account, Ashok account. नहीं फर्स्ट इट वाज हाँ पूनम एंड सोनू. अशोक को नीचे बना देते. There is no transaction in Sonu's account also, but we'll have to make one because they're telling it is going to be a lengthy question बेटा. हाँ. मतलब अभी मैं जो करने वाला हूँ सिर्फ ऐसा बोलता ना हाँ वही है. चलो चालू करते हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कैश अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है 20,000 बट दिस इज द ओपनिंग बैलेंसेस. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बॉट डाउन. टू ओपनिंग बैलेंसेस तो टू बैलेंस बॉट डाउन हम लोग करते हैं ना सी डी बी डी. ये बी डी वाला है. सो बी डी कहाँ जाता है यहाँ जाता है. डेबिट में जाता वाई है हमेशा जितना होगा उससे ज्यादा स्पेंडिंग. very good and asset is having always a debit balance and also here they have given cash can cash का debit side पे ना वो भी एक लॉजिक अपना लगा सकते हो आप. तो टू बैलेंस बॉट डाउन ये यहाँ पे भी रहेगा इसमें भी रहेगा स्टॉक में भी रहेगा. जो सब स्टार्टिंग में. हाँ बिकॉज दीज आर ऑल डेबिटेड ना बेटा. फर्नीचर में भी डेबिट बैलेंस रहेगा. पूनम में भी डेबिट रहेगा बिकॉज वो मेरी डेटर है. एंड सोनू में भी डेबिट रहेगा. मतलब ऑल ऑफ द एसेट्स विल बी डेबिटेड और वॉट एवर वॉज डेबिटेड अर्लियर वो हम लोग मिलेंगे बैलेंस. क्रेडिट का आएगा अशोक विल बी अ क्रेडिटर. अशोक इज एन क्रेडिट. हाँ बाय बैलेंस. वेरी गुड सर. डेट विल बी द सेम. स्टार्ट फर्स्ट ऑफ द मंथ. परफेक्ट. माई बैलेंस ब्रॉड डाउन ना बेटा. पक्का. हाँ. चलो सब में ब्रॉड डाउन है. सब ब्रॉड बिकॉज स्टार्टिंग ना. हाँ सर अभी आप अमाउंट्स मुझे बताते जाएंगे. सबसे पहले क्या है कैश का 20,000 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो थोड़ा याद है. बैंक नहीं मेरे को याद है सर 35 था 35 था. हाँ तो मिस्टेक किया अपन ने. 15 था. क्या इट इज 15. क्या बात है सर. और 4,000. 4,500 बोला आपने. वही. परफेक्ट है नहीं राइट है. फिर यहाँ पे भी पूनम के अंदर आएगा डेबिट साइड पे. पूनम का अमाउंट कितना था 20 and 10 है ना. तो ये कुछ ज्यादा ही मोटा नहीं हो गया ये लाइन है ना. बहुत बीच में आ रहा था. पूनम का आपने मुझे 20 बोला. अपने क्रेडिट अच्छा बोलो. डेटर है ना वो. हाँ. इसका तो बहुत इजी था 13,500 21,500. हाँ सर आप देख रहे हो अभी तक क्वेश्चन का खाली फर्स्ट एंट्री हुआ है एंड कितने सारे डेबिट्स एंड कितने सारे क्रेडिट्स हैं. ये क्वेश्चन सिर्फ आपको क्या करा रहा है मालूम है. इट्स जस्ट फ्लो में लेके आ रहा है कि भाई इतने सारे ट्रांजेक्शन दिए इसको सॉल्व करते रहो फट 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 तो वो बैठ जाएगा आपके दिमाग में. अशोक के बाद में क्या था द सेकेंड क्रेडिटर. हो गया ना किसी लिखा है. हाँ बट वही तो बोलो अशोक के बाद में क्या था. अच्छा अशोक के बाद पंकज हो. 21,500 यहाँ लिखना पड़ेगा ना पंकज. और कैपिटल में लिखना पड़ेगा 69,500. मेरे पास मस्त ऑप्शन है सर. आपके पास जरा भी ऑप्शन नहीं है हाँ. है ना. बहुत मजा आएगा.
सर मैं बैठ के देखने वाला आपको लिखने के टाइम पे लिखो, तुम लिखो बेटा, ऐसा। मेरे को पता है आपके पास आईपैड है, बट जरा भी शान पट्टी करके से मैं आईपैड में लिख रहा हूँ, नहीं, जरा भी कट पेस्ट नहीं करना तुमको अपने बुक में ही लिखना है। चलो, नाउ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट 5000 फोर्थ को, या तो परचेज अकाउंट ओपन कर दूं मैं। Is 5000, and in the Pankaj account I'll be writing on the credit side to buy. By purchase. Very good. Buy purchases account 5000, डिफिकल्ट है Right. सर। दोनों अकाउंट्स, दोनों साइट्स पे करना जरूरी है अपने को पोस्टिंग। 7 को अशोक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट 13,500 शो अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, बाय कैश और बाय डिस्काउंट ना सर। अशोक अकाउंट इज डेबिटेड ना, हाँ तो 2 आएगा ना ब्रो, अशोक में 2 आएगा ना, इट इज डेबिटेड अच्छा हाँ शो डेबिट हाँ ये नीचे भी वैसे भी टू ही लिखा है ना। तो अपन क्यों बाई बोले, हाँ हाँ सही अपन ने, सॉरी तुम क्यों बाई बोले, है ना, मैं क्यों अपना है ना। नहीं ले प्रेम, 13,000 एंड सर एक बात नोटिस करिए आपने यहाँ पे, ये वाले ट्रांजैक्शन के बाद में, नाउ अशोक का अकाउंट इज क्लोज्ड। ओके अच्छा देखो ना, हाँ now we have no relation with account with अशोक। इफ इन फ्यूचर वी हैव नो ट्रांजैक्शन, मतलब इसका कहानी खत्म। मतलब आप अशोक को अभी फोन करोगे ना, तो पैसे के लिए फोन मतलब नहीं हो सकता, है ना। अभी फोन करके क्या बोलेंगे, क्या बोलता भाई बिडू, और पहले हम लोग फोन कर देते और ये पैसा दे, अरे अरे तुम्हारा पैसा बाकी देता हूँ बाद में, एक्सेट्रा वट एवर इट इज। नेक्स्ट सर, देखो यही हम अपन बातें करते करते अपन इसका एंट्री पास कर लिया, बराबर है, एक इफेक्ट दे दिया, सेकंड इफेक्ट देना बाकी है। अपने कैश में और उसमें पोस्ट कर दिया ना, तो कैश में कभी पोस्ट करोगे, अच्छा हाँ उसको डाल देंगे देखा सर, यही मिस्टेक होता है। सर तो डिस्काउंट अकाउंट नहीं बनाया हाँ बनाएंगे ना, अरे ब्रो अभी तो मजा है, बस मजा है तेरे लिए। बाय क्या नाम है यशो अशोक, अशोक कितना, 13,000 नहीं वो मतलब कैश है हाँ हाँ ठीक है रिसीव ना। इफ यू हैव डिस्काउंट अलाउड तो उसका अलग से लिखना बेटा, यू कैन नॉट मिक्स इट अप। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई आई कैन नॉट मिक्स इट अप, उसका भी लॉजिक आपको मालूम पड़ेगा व्हेन आई विल डू अ चैप्टर फाइनल अकाउंट्स, क्लियर होगा उस टाइम पे, पक्का सर। पूनम, पूनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10th, अमाउंट कितना था, 10,000 और 10 तो ये था, अच्छा डेट 11,000 था आई गेस। विल ओपन वन मोर अकाउंट दैट इज सेल्स अकाउंट। हाँ सर, ये तुम्हारे चक्कर के अंदर मैं थोड़ा कंटाल जाता हूँ ऐसा, इतने सारे अकाउंट्स बना बना के, हैं भाई पूनम अकाउंट। सर तुम्हें तो गलत गलत बोलोगे ना, है एक तो मेरे को तेरे पे भरोसा हो चुका है तो कल टेस्ट बराबर किया तो मेरे पे भरोसा है तो राइट बोलता है करके। नेक्स्ट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट, सर अशोक का फिर से अकाउंट खुल गया, वापस है हाँ अपन ने बंद किया था ना अभी, हाँ 13,500 अभी फिर से आ गया। और ये होता है सर, दिस इज हाउ द बिजनेस ऑपरेट्स। तो 12/4 को परचेज किया है, बाय परचेज में क्या ये अशोक में हम्म, टू सेल ये क्या था उसका नहीं बाय परचेज ही था, परचेज टू अशोक था ना ब्रो। अच्छा परचेज टू अशोक अब राइट नहीं, ये सर कॉन्फिडेंस रहने का, रॉन्ग तो रॉन्ग, ऐसा टेंशन क्या है। गुड मॉर्निंग, ओके कितना है, 12,000 12 तो डेट था। अच्छा अच्छा वो सर आई परचेज अकाउंट हम लोग क्या करेंगे ब्रो, डेबिट करेंगे, पक्का 3,000 हाँ। अच्छा 12 हाँ गुड कैच सर, तुम्हें ना ऐसा मेरे को गाली देते ना मन में, फिर मेरा भी रॉन्ग होता है, फिर वो लगता है अरे यार, है ना। नहीं नहीं चलो ठीक है, आप स्वीट है बहुत। ओके सर, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड है यार। तो मैं वो डिस्काउंट नहीं डाल सकता। बच्चे लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट को बनाते हैं, डोंट राइट रिसीव एंड अलाउड, तो उसमें मिस्टेक हो जाती है। अलग अलग यस, पूनम 25,000 पे करना था पूनम को, वेर इज पूनम, पूनम ये रहा। नाउ
डेट इज 18th. यहाँ पे राइट बाई कैश. नो, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. कैश में Woman paid me 24,000 and I allowed her discount. So यहाँ पे अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अपने को. दैट इज डिस्काउंट. आपका डाउट वैलिड है कि सर डिस्काउंट को डिस्काउंट में लिखो ना. अरे भाई, दैट इज डिस्काउंट रिसीव, दैट्स एन इनकम, दैट्स एन एक्सपेंस. नहीं समझे? सिंपल लॉजिक है सर. फिर उसके बाद में हम लोग को बोल रहा है कि सर अभी ये सब के सब एक्सपेंसेस है यार. स्टेशनरी, टेलीफोन एंड सैलरीज. सर मैंने तीनों दिन को साथ में किया है, तो प्लीज मेरे को जरा भी ऐसा ये नहीं बोलना. एंड आप ऐसे मत करना सर. करूँगा ही कैसे? नहीं कर सकते हो तुम. नहीं मतलब बुक में कैसे करूँगा? अरे कॉपी पेस्ट नहीं रे ब्रो. तीनों तीन एंट्री का एक साथ में डेबिट और तीनों तीन एंट्री का एक साथ में क्रेडिट, वो बोल रहा हूँ. चलो स्टेशनरी में डेबिट हो रहा है टू कैश 1200. तो यहाँ पे स्टेशनरी का अकाउंट ये रहा. दिस इज 1200. कैश में टेलीफोन का देख लेते हैं. टेलीफोन का है 3500 एंड 6000. तो यहाँ पे टेलीफोन का है 3500, 6000. दिस वॉज ऑन द लास्ट डे. 27 टीडीएस जॉब है बच्चे, ये है ना टाइम भी लगेगा. सर. एग्जामिनेशन में ना देखें. 25 था. ये 25 है सर. एग्जामिनेशन में लोग वही चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो. नाउ विल कम इन द कैश अकाउंट. इसमें जर्नल के मार्क्स नहीं होते ना, मतलब जर्नल से ड्राफ्ट नहीं, बट दे हैव टोल्ड यू ना टू पास जर्नल एंट्री. आगे पढ़ेंगे. हाँ देखो यहाँ पे फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बुक्स जर्नल. अरे लास्ट टाइम आपके कॉलेज में क्या पूछा था कि जर्नल तो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही नहीं डाला था. उन्हें जर्नल और फिर उसके बाद में लेक्चर उसका ट्रायल में सब एक साथ में दे दिया था 20 मार्क का. नहीं. हाँ जबरदस्त, टेंशन ही नहीं. और 5 मार्क एमसीक्यू डाल दिया, खत्म. अच्छा तो जर्नल भी पूछ लिया, लेजर भी पूछ लिया. अभी प्रॉब्लम में क्या हो गया कि जिसने जर्नल में समझो कि पूरा जर्नल अलग क्वेश्चन आता है एंड उसने अगर जर्नल में एंट्री में मिस्टेक किया होता तो उसका 1 मार्क जाता. बट अभी वही जर्नल कैरी फॉरवर्ड कहाँ पे हुआ, लेजर में. तो लेजर का भी मार्क्स नहीं मिला, फिर ट्रायल में उसका भी मार्क्स नहीं मिला. शायद लेजर अलग देता तो उसके ट्रांजेक्शन में उसको प्रॉब्लम नहीं आती तो सब हो जाता बराबर से. नहीं समझा तुम क्या बोलते हो मैं, है ना. हाँ चलो. तो स्टेशनरी एंड सैलरीज का कैश हो रहा है. डन है सर. हाँ. सॉर्टेड हो गया सर अपना. सबका टोटल मतलब करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा. यस तो जो बैलेंस यस बैलेंस एव्हरीथिंग ब्रो, एव्हरीथिंग. सगळं सगळं करायचं आहे तुला. और मैंने क्या बोला तुला, तो मैं नहीं करने वाला, मेरा काम हो गया. नहीं आई डू दिस क्वेश्चन. इसका मुझे करना है आपके लिए. चलो सबका सब पोस्टिंग होगा सर. मुझे पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 3 एंट्री साथ में किया है तो आई माइट हैव मिस समथिंग. स्टेशनरी, टेलीफोन, सैलरीज डेबिट किया मैंने. स्टेशनरी, टेलीफोन हाँ डेबिट किया मैंने. फिर कैश एंड बैंक में हाँ वो तो मैंने अभी किया ना. दिस एंड दिस दैट. बोलो क्या डिफिकल्टी है सर. एकदम इजी लग रहा है आपको. सर ये थोड़ा सा है ना एक लाइन नीचे जा रहा है तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है वो चीज़. तो व्हाट आई विल डू इज है ना वो लाइन अपने नीचे ऊपर नीचे का तो अच्छा नहीं लगेगा. तो टेक्नोलॉजी का पूर्ण उपयोग करते हुए सर यहाँ पे ऐसे. ओके बच्चे. नाउ विल क्लोज द अकाउंट्स. दिस बिकम्स वेरी बेसिक फॉर यू. ब्लू कर लेते हैं. वी रिसीव्ड हाउ मच 44,000 rupees. We received 44,000 but we spent 20 आया. 20,200 आया ना. तो कितना बाकी है 23,000. अच्छा 23,000 पक्का मालूम पड़ा कैसे किया आपने. मैंने
एक अभी एक आपको मैं क्रेडिट का बता देता हूँ करके, ये वाला, ठीक है। फिर मैं बाकी बाकी वाले को एकदम सुपर फास्ट कर दूंगा स्पीड पे। 13,500। ये क्रेडिट इज मोर ना, वो ये हाँ 28,000। नहीं समझे। समझे। सो वन डेबिट का मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, क्रेडिट का बता दिया, अभी बाकी सब मोनोटोनस है, ठीक है। तो सुपर फास्ट में जाएंगे अभी, जुप 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 वाला।